Everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, we'll be covering all the environmental related current affairs for the upcoming CBSE direct recruitment examination. We'll start with the month of January. So, the first news item is Kerala's famed Kappad Beach. Kappad Beach in Kozhikode and Chal Beach in Kannur have been bestowed with the coveted Blue Flag certification by Denmark-based Foundation for Environmental Education. ठीक है, कपाड़ बीच है एक तो, और दूसरा है छाल बीच. ठीक है, तो इसको लर्न करने के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि किसी को हम अपने फ्रेंड्स को बोल रहे हैं कि कैप पहन के बीच चलो, तो चल से चल हो जाएगा एंड कैप से कपाड़. ठीक है, नेक्स्ट आइटम है राजस्थान उदयपुर एंड मध्य प्रदेश इंदौर have become India's first two cities to receive international accreditation as wetland cities under the Ramsar Convention. ठीक है, it accredited 31 new cities including 2 from India, making the global list of such cities to reach 74. ठीक है, तो वेटलैंड सिटीज़ कौन से हैं हमारे इंडिया के? दो, एक तो उदयपुर है एंड द सेकेंड वन इज़ मध्य प्रदेश इज़ इंदौर. तो उदयपुर को सिटी भोपाल एज वेल एज उदयपुर आर नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एमपी के इंदौर में भी देयर आर अ कपल ऑफ वाटर बॉडीज, वेटलैंड्स हैं, इसलिए बोथ द सिटीज़ हैव बीन accredited as wetland cities under Ramsar Convention. ठीक है, टोटल कितने हैं? 74 है पूरे वर्ल्ड में. नेक्स्ट आइटम है the first ever multi-taxon global freshwater fauna assessment for the IUCN Red List of threatened species has identified Western Ghats as a key location with the greatest abundance of threatened freshwater species. ठीक है, तो इसमें क्या दिया है? एक असेसमेंट कैरी आउट करा था, मल्टी टैक्सन ग्लोबल फ्रेश वाटर फाउना असेसमेंट for the IUCN Red List of Threatened Species. This was carried out और उसमें Western Ghats was came out to be a key location with the greatest abundance of threatened freshwater species. Next, the Union Minister of Commerce and Industry, Piyush Goyal, unveiled the Bharat Clean Tech Manufacturing Platform at the Bharat Climate Forum 2025 in New Delhi. The Ministry of Commerce and Minister of Commerce and Industry has unveiled क्या प्लेटफॉर्म है ये? भारत क्लीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म. ठीक है, क्लीन टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट करने के लिए, क्लीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म करा है अनवील एट द भारत क्लाइमेट फोरम ऑफ 2025. नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डेजिग्नेटेड एरियाज अराउंड शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी as eco-sensitive zones to reduce the impact of urbanization and developmental activities on the surrounding protected regions. ठीक है, तो इसमें शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? ये है एक सेकेंड, पीर पंजाल रेंजेस, हिमाचल प्रदेश. ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं. इस किसके लिए फेमस है ये? ब्लैक बियर एंड गोरल. ब्लैक बियर होता है एक तो वहाँ पे, और गोरल होता है, और मोनल भी होता है. ठीक है, तो धौलाधर, पीर पंजाल माउंटेन रेंजेस पास थ्रू दिस, और शिकारी देवी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में. ठीक है, नेक्स्ट है NASA Earth Observatory features tropical cyclone Sean, which brought record-breaking rainfall to the Pilbara region of Western Australia. So NASA का जो Earth Observatory है, उसने ये वाला साइक्लोन को it was captured there, and कहाँ पे आया था ये वाला साइक्लोन? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पिलबारा रीजन में. ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन शियोन. नेक्स्ट है द केरला वार्निंग्स क्राइसिस एंड हजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम कवचम.
The disaster risk warning system was launched by the Chief Minister Pinarayi Vijayan, and it was developed by the Kerala State Disaster Management Authority. ठीक है, केरला के जो सीएम है पिनराई विजयन, उन्होंने ही हैज़ लॉन्च दिस प्लेटफॉर्म नहीं, एक डिज़ास्टर रिस्क वार्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका नाम क्या है, कवचम। किसने करा है, केरला की डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, a group of scientists recently discovered a new glacier in Uttarakhand that was found to be rapidly expanding in size, located in the Niti Valley, a remote area in the northernmost region in the hilly state close to the Indian-Tibetan border. ठीक है, तो एक न्यू ग्लेशियर आ गया है उत्तराखंड में, which was expanding in size rapidly, and it is located in the Niti Valley. तो ये ठीक है, इसका नाम अभी तो दिया नहीं है इन लोगों ने, बट दैट इज़ द न्यूज़ आइटम। नेक्स्ट है नेपाल का जो याला ग्लेशियर है ना, इट इज़ श्रिंकिंग सो रैपिडली दैट बाय द 2040s इट इज़ प्रिडिक्टेड टू डिसअपियर इंटायरली। तो ये इम्पोर्टेंट है, नेपाल में जो याला ग्लेशियर है इट इज़ डिसअपियरिंग वेरी रैपिडली। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली ऑफ नेपाल announced the Sagarmatha Samvad dialogue, scheduled to take place in Kathmandu on May 16th to 18th, 2025, held on the occasion of International Year of Glaciers Preservation 2025. ठीक है, the Sagarmatha Samvad has been scheduled to be organized biannual event है ये सागरमाथा संवाद। कहाँ पे हो रहा है, नेपाल का काठमांडू में, मई में हुआ था 2025 में, और इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन के लिए इट वाज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ये बाई एनुअल डायलॉग है, बाइलैंग्वेज कॉन्फ्रेंस या डायलॉग बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव delivered the keynote address at special ministerial session of the third international conference on sustainable circularity organized by the Society of Indian Automobile Manufacturers in New Delhi, और इसका थीम था नेचर पॉजिटिव रिसाइकलिंग। ठीक है, तो इसमें दिस इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम, इसमें बस आप ये याद रखिएगा कि ये हुआ था थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल सर्कुलरिटी। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था, इट वॉज पहले तो इट अकर इन न्यू दिल्ली में हुआ था, और किसने ऑर्गेनाइज किया था इसको, सियाम, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। तो ये लोग क्या प्रमोट कर रहे हैं, सर्कुलरिटी इन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। सर्कुलरिटी क्या होता है, बेसिकली वो रीन्यू रीयूज रिसाइकिल का है ना, रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल वाला। तो बेसिकली दे एम टू प्रमोट रिसाइकलिंग ऑफ द, ये रिसाइकिल करना जो पुराने ऑटो पार्ट्स हैं या जो भी डिस्कार्डेड व्हीकल्स हैं उनको रीयूज़ करना या रीन्यू करना और रिसाइकिल करके अपने न्यू ऑटोमोबाइल्स बनाना। ठीक है, तो सियाम ने ऑर्गेनाइज किया था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल सर्कुलरिटी। नेक्स्ट है, recently researchers from the BHU identified a new species of phytopathogenic fungi named Epicoccum indicum। ठीक है, तो BHU ने एक न्यू फंगाई ढूंढा है, इसका बस जस्ट लुक एट द नेम, दिस इज़ नॉट एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बट स्टिल यू शुड हैव एन आइडिया। एपिकोकम इंडिकम करके है, इंडिया से लिया होगा इंडिकम, और BHU ने ढूंढा है, इट इज़ फाइटोपैथोजेनिक फंगाई। ठीक है, नेक्स्ट है, त्रिपुरा हैज़ रिकॉर्डेड अ माइलस्टोन इन बायोडाइवर्सिटी डॉक्यूमेंटेशन। तो with the first ever recording of the banded royal butterfly, which is a rare species in the state of Sipahi Jala Wildlife Sanctuary। ठीक है, तो उनको फर्स्ट टाइम बैंडेड
रॉयल बटरफ्लाई मिली है त्रिपुरा में, और इट इज़ अ रेयर स्पीशीज़। और कहाँ पे मिली है? उनका जो उनका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है स्टेट का, सिपाही जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सिपाही जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा त्रिपुरा। त्रिपुरा में सिपाही जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, नेक्स्ट है researchers at the Center for Peninsular Aquatic Genetic Resources, Kochi, of the National Bureau for Fish Genetic Resources claimed to have developed a captive breeding protocol for black collared yellow catfish. It is endemic to the Chalakudi River in Kerala. ठीक है, तो इसमें बस इम्पोर्टेंट क्या पोर्शन है, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि कैप्टिव ब्रीडिंग का प्रोटोकॉल डेवलप किया है। ये पूछ सकते हैं कि ब्लैक कॉलर्ड येलो कैटफिश ये कहाँ पे मिलती है? इट इज़ एंडेमिक टू विच रिवर? ठीक है, दिस में बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, तो इट इज़ एंडेमिक टू द चालाकुडी रिवर इन केरला। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है द गड्डी डॉग, a loyal and resilient shepherd dog from the Himalayas, has been officially recognized as an indigenous breed by the National Bureau of Animal Genetic Resources (NBAGR) under the Indian Council of Agricultural Research. ठीक है, तो जो गड्डी डॉग है ना उसको इट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड एज एन इंडिजिनियस ब्रीड, और किसने रिकग्नाइज किया है? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ने। तो बस यही हमें पता होना चाहिए कि गड्डी डॉग है जो, ये कहाँ का है? तो हिमालयन डॉग है ये, हिमालयन शेपर्ड डॉग है। ठीक है, नेक्स्ट है द साइंटिस्ट्स ऑफ द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैव आइडेंटिफाइड अ न्यू स्पीशीज ऑफ इंडो बर्मीज पैंगोलिन that diverged from the Chinese pangolin approximately 3.4 million years ago. ठीक है, वैसे बेसिकली पैंगोलिन टू टाइप्स के होते हैं, एक तो चाइनीज़ होता है और एक इंडियन पैंगोलिन होता है। तो उन्होंने एक न्यू वेराइटी निकाली है, पहले बस दो टाइप के होते थे, एक इंडियन और एक चाइनीज़, अभी एक और वेराइटी है इंडो बर्मीज पैंगोलिन। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इंडो बर्मीज मतलब म्यांमार वाले रीजन, नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे मिलता होगा ये इंडो बर्मीज पैंगोलिन। इसका नाम क्या है? मानिस इंडो बर्मानिका, दिस इज द साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट है रिसर्चर्स फ्रॉम द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड 2 स्पीशीज इन द कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, और इन स्पीशीज़ के नाम क्या क्या है? हेमीगोबियस होवेनी एंड क्या है? मुगिलिगोबियस टिग्रिनस। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है कि कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ठीक है, तो ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ गया? आंध्र प्रदेश में है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस में बी आस्क्ड। और ये जो दोनों एनिमल्स हैं कहाँ गए? हेमीगोबियस होवेनी, और इसका मैं एक बार लेट मी चेक कि क्या एनिमल है ये। हेमीगोबियस होवेनी, अच्छा ये फिश है बेसिकली एक। ठीक है, टाइप ऑफ फिश। और दूसरा वाला मुगिलिगोबियस, मुगिली, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फिश। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर वेरी स्मॉल टाइप्स ऑफ फिश विच आर फाउंड इन मैंग्रोव्स। ठीक है, और ये जो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, दिस इज इंडियाज 3rd लार्जेस्ट मैंग्रोव रीजन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं
The Jharkhand Forest Department has initiated a study to revive the dwindling population of bison. तो झारखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया है, पॉपुलरली नोन एज गौर, एट द पलामू टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? झारखंड में है, और उन्होंने न्यू स्टडी करा है टू रिवाइव बाइसन। नेक्स्ट है, recent research has revealed four new tarantula species including a new genus from India's western ghats। ठीक है, tarantulas live in hollow tree hollows में रहते हैं, और ये वैसे स्पाइडर को बोलते हैं, बड़ा सा स्पाइडर होता है उसको टारंटुला बोलते हैं। यहाँ शोला फॉरेस्ट जो है वेस्टर्न घाट्स में, वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, ट्री टी प्लांटेशंस हैं काफ़ी सारी उस एरिया में, देयर आर लॉट ऑफ टारंटुला स्पीशीज़। तो 4 न्यू मिली हैं, दिस इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम। बस ये पूछ सकते हैं कि टारंटुला स्पीशीज़ कहाँ पे मिलती है इंडिया में ज़्यादातर, सो द आंसर विल बी वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, नेक्स्ट है, रिसर्चर्स फ्रॉम द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया have identified 23 species of blood-sucking flies, 13 of them recorded for the first time in the country in the Andaman and Nicobar Islands. They are locally called as boosie flies. तो ब्लड सकिंग फ्लाइज के न्यू टाइप्स मिले, न्यू स्पीशीज़, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर एग्ज़ाम में ये पूछ सकते हैं कि भूसी फ्लाइज जो होते हैं, वेयर आर दे फाउंड नॉर्मली, तो द आंसर विल बी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट वील मूव टू फेब्रवरी के करंट अफेयर्स फॉर द सब्जेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रिसर्चर्स फ्रॉम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, Indian Institute of Spices Research, IISR, Kozhikode, have identified a new fungal disease caused by fungal pathogen pyricul नाम क्या है, Pyricularia spp, that severely affected ginger crop in 2024 in parts of Kodagu district in Karnataka। ठीक है, तो एक फंगल डिजीज का नाम है, क्या है, फंगल caused by the fungal pathogen Pyricularia spp, और किसको होता है ये, जिंजर क्रॉप को। तो दिस मे बी आस्क्ड एज अ मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग में ऐसे 3-4 दिए रहेंगे, उसमें से एक रहेगा कि जो पैथोजन है पायरिकोलेरिया एसपीपी, पायरिकोलेरिया एसपीपी, ये कौन से क्रॉप को इफेक्ट करता है, तो द आंसर विल बी जिंजर क्रॉप। ठीक है, पायर, एक सेकेंड, इसको लर्न कैसे करते हैं हम लोग, रुको, पायरवेयर, वेट अ सेकेंड, अच्छा ठीक है, तो इसको ऐसे लर्न कर लेना कि जिंजर है ना, जिंजर से बनी हुई कोई भी डिश हम लोग पाए अपने, जैसे बोरोसिल के बर्तन होते हैं ना, ग्लास बाउल्स, तो पायरेक्स का भी कुछ कुछ होता है पायरवेयर करके, है ना, तो उससे आप लर्न कर लीजिए कि जिंजर की कोई डिश इसमें रखी है हमने, सो दैट इज़ हाउ यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस। तो फंगल पैथोजन का नाम है पायरिकुलेरिया, तो पायरिकुलेरिया से पायरेक्स पायरवेयर, और जिंजर से जिंजर हो जाएगा, और कहाँ पे मिला है ये हमें, कोडागू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, तो कर्नाटका में मतलब बैंगलोर, बैंगलोर में कुछ आप सोच लो कि कुछ खाने का बढ़िया आइटम मिल रहा है, साउथ इंडियन फूड कुछ भी अच्छा सा मिल रहा है, और वो पायरवेयर में सर्व कर रहे हैं, एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ जिंजर इन इट। ठीक है, नेक्स्ट है, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ नेटिव स्पीशीज सीड वॉल्ट with cryogenic facilities at Tamil Nadu Agricultural University in Coimbatore
which will cost 10.5 lakhs, aims at conserving rare, endangered, and threatened plant species through cryopreservation. So, cryopreservation is basically a technique that preserves living cells, tissues, and organs at very low temperatures. ठीक है, तो एक सीड वॉल्ट बना रहे हैं विद क्रायोजेनिक फैसिलिटीज एट तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इन कोयम्बटूर. दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट है ब्रूसेलोसिस, reported in Kerala. 8-year-old girl in Malappuram district of Kerala, वो मर गए हैं एंड रिसेंटली आफ्टर अंडरगोइंग अराउंड 2 months ट्रीटमेंट ऑफ ब्रूसेलोसिस. तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाउएवर ये वाला इम्पोर्टेंट है. दिस पोर्शन इज इम्पोर्टेंट. अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, brucellosis is a bacterial disease caused by various brucella species which mainly affect cattle, swine मतलब pigs, goats, sheep and dogs. ठीक है, तो वो ह्यूमन को भी हो गई थी एक केरला में गर्ल को, और शी अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट हर लाइफ. ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि ब्रूसेलोसिस इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़. ठीक है, बैक्टीरिया से हो रहा है एंड ब्रूसेला स्पीशीज से होता है, और एनिमल्स में होता है नॉर्मली, कैटल, डॉग वगैरह में. नेक्स्ट, UNGA हैज़ एस्टैब्लिश्ड द इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन, also designated March 21st as the annual World Day for Glaciers, beginning in 2025. तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन कौन सा था? 2025. और वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स कब कब रहता है? अब March 21. ठीक है, नेक्स्ट है माउंट तारानाकी becomes a legal person, and इसको पहले it was known as Egmont, and the name, रुको, जो माउंट तारानाकी था ना, it has become a legal person. इसको पहले एगमोंट बोलते थे, and it was named by ब्रिटिश एक्सप्लोरर जेम्स कुक इन द 18th century. और अभी उसका न्यू नेम क्या रख दिया? तारानाकी मोंगा. और जो उसका सराउंडिंग नेशनल पार्क है, इट हैज़ ऑल्सो बीन गिवन अ माओरी नेम. ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम. माउंट तारानाकी कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में. माओरी ट्राइब भी न्यूजीलैंड का ही ट्राइब होता है. ये हाका डांस वगैरह करते हैं ये लोग शायद. तो बस इस पे याद रखना कि विच इज़ द माउंटेन विच हैज़ बिकम अ लीगल एंटिटी अभी. तो माउंट तारानाकी है, पहले इसका नाम एगमोंट था. एंड वेयर इज़ इट सिचुएटेड? न्यूजीलैंड. नेक्स्ट है गोल्डन हेडेड सिस्टिकोला फाउंड इन माथीकेतन शोला नेशनल पार्क. तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या रहेगा? माथीकेतन शोला नेशनल पार्क कहाँ पे? केरला में. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हैज़ बीन इन न्यूज़, तो ये पूछ सकते हैं कि कहाँ पे. शोलाज आप याद रखिए वेस्टर्न घाट से रिलेटेड रहता है, और तो मतलब कोई वेस्टर्न घाट वाले स्टेट में रहेगा. तो द आंसर फॉर दिस इज़ केरला. KE से आप केरला लर्न कर लेना. शोला से आपको पता चलेगा कोई वेस्टर्न घाट वाला स्टेट है. ठीक है क्या वैसे गोल्डन हेडेड? मैं एक बार चेक कर लेती हूँ क्या चीज़ है ये. गोल्डन हेडेड सिस्टोल, हाँ एक बर्ड का नाम है. ठीक है. Next, the Framework Agreement on Establishment of the International Big Cats Alliance has officially come into force from 23rd January 2025. The IBCA, that is the International Big Cats Alliance, and its secretariat have become a full-fledged treaty-based intergovernmental international organization and international legal entity. ठीक है, तो इसमें क्या है? जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है ना, इट हैज़, उसका जो अग्रीमेंट है, इट हैज़ ऑफिशियली कम इनटू फोर्स. एंड ये कहाँ पे
हेडक्वार्टर्ड है, मेरे को चेक करने दो, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, तो न्यू दिल्ली में ही हेडक्वार्टर्ड है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू दिल्ली, ठीक है। और it was launched by India in April 2023 to conserve world's 7 major big cats. तो टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगुआर और चीता, इन सबको कंजर्व करने के लिए इंडिया itself had launched this multi-agency coalition. It is a multi-country, multi-agency coalition and it is headquartered at New Delhi. ठीक है। और इसमें हाँ बस इसका मेंबरशिप जो फाउंडिंग मेंबर्स है ना वो है इंडिया, निकारागुआ, एस्वातिनी, सोमालिया एंड लाइबेरिया, ठीक है। नेक्स्ट है द सेंट्रल जू अथॉरिटी हैज़ अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू सेट अप अ वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर इन मध्य प्रदेश रीवा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। दिस इज़ नॉट वेरी इम्पोर्टेंट पर फिर भी हाँ पूछ सकते हैं कि इंडिया का वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे है, तो वो रीवा में है, मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोलते हैं, है ना, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि बिकॉज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इज प्रेजेंट इन मध्य प्रदेश ओनली, है ना, तो उसको टाइगर स्टेट बोलते हैं। तो वहीं पे वाइट टाइगर्स को ब्रीडिंग कर रहे हैं रीवा में। तो रीवा को कैसे लर्न करेंगे आप लोग, जैसे न्यू चीज़ है ना वाइट टाइगर इज न्यू, तो उसी से न्यू से राइमिंग क्या हो जाएगा, रीवा, ठीक है, ऐसे लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट्स, प्रकृति, inaugurated and was held in New Delhi on 24th and 25th February. It was organized by Bureau of Energy Efficiency under Union Ministry of Power. तो ये इम्पोर्टेंट है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट्स, उसका नाम क्या, मतलब पूरा नाम क्या था, प्रकृति। दिस वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। और किस मिनिस्ट्री के अंडर करा है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर इसको ऑर्गेनाइज करा है। और February 2025 में हुआ था ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है डेट, बस ये इम्पोर्टेंट है, प्रकृति था इसका पूरा नाम, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट्स, मिनिस्ट्री ऑफ पावर में के अंडर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी हैड ऑर्गेनाइज्ड इट। Next day, the conference brought together the experts, policymakers, industry leaders, researchers, and practitioners of carbon credit certificate trading. तो ये ठीक है। नेक्स्ट है इथोपियाज माउंट फेंटाल volcano has emitted massive methane plumes, an unprecedented natural event with potential climate change implications. तो मीथेन प्लूम्स उनको बोलते हैं, गैसेस को बोलते हैं। इथियोपिया का है माउंट फेंटेल वॉल्केनो, वहाँ उसने काफ़ी सारा मीथेन गैस एमिट करा, और मीथेन गैस एज यू नो इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एग्ज़ाम में क्या पूछेंगे, माउंट फेंटेल वॉल्केनो कहाँ पे है, तो वो है एथियोपिया में, ठीक है। और क्या, मीथेन प्लूम्स इट हैज़ एमिटेड। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायोबैंक एट पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क इज़ फुली ऑपरेशनल। तो ये बस पूछेंगे कि इंडियाज़ फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायोबैंक कहाँ पे है, इट इज़ एट पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, उसको दार्जिलिंग जू भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें एक बार मैं लेट मी चेक कि वेट अ सेकेंड, हाँ ये वो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है, और वाइल्ड लाइफ बायो
पार्क, बायो बैंक है ये। हाँ, तो इसमें बेसिकली जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है एनिमल्स का। ठीक है। एंडेंजर्ड और जो रेयर एनिमल्स होते हैं ना, उनका जेनेटिक मटेरियल इज स्टोर्ड हियर एट अल्ट्रा लो क्रायोजेनिक टेम्परेचर्स। ठीक है। तो हमने पहले ऊपर सीड बैंक का भी देखा था, सिमिलर टू दैट। दैट वाज फॉर प्लांट्स, और ये वाला है वाइल्ड लाइफ के लिए। नेक्स्ट है कैली फंड लॉन्च्ड एट CBD COP16 to boost biodiversity finance, named after the host city for last year's COP16 biodiversity summit in Colombia। ठीक है। तो इसमें अब ये इम्पोर्टेंट है, कैली फंड जो है वो कब लॉन्च हुआ था? इट वॉज लॉन्च्ड एट CBD COP16 to boost biodiversity finance, and it was named after the host city for last year's summit in Colombia। ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस को प्रमोट करने के लिए क्या डाला है? कैली फंड। ठीक है। और CBD का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी, है ना? कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसका COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 हुआ था कोलंबिया में, और वहाँ पे कैली फंड निकाला गया फॉर बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस। नेक्स्ट वील मूव टू मार्च के environment related current affairs. So first of all we have Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park, वो सेम चीज़ रिपीट हो रही है, in West Bengal's Darjeeling has become India's first zoo to preserve DNA samples of wildlife found exclusively in snowy regions। ठीक है। तो इसका क्या बोलते हैं? वाइल्ड लाइफ बायो बैंक बोलते हैं। और पद्मजा नायडू, है ना? इसको हम लोग लर्न कैसे करेंगे? कहाँ पे? दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। ठीक है। इसको लर्न करने के लिए ऐसे ही लर्न कर लो। वैसे तो देखो, वेस्ट बंगाल का एक नेम होता है पद्मा। आपने अगर हैरी पॉटर देखी होगी ना, तो उसमें 2 इंडियन कैरेक्टर्स थे, पद्मा एंड पार्वती। ठीक है। तो ये जो पद्मा की जो एक्ट्रेस थी मेन, जिसने ये प्ले किया था, शी वॉज फ्रॉम बांग्लादेश। ठीक है। तो उससे बंगाल लर्न हो जाएगा, और पद्मा बंगाल में दार्जिलिंग से। ठीक है। ऐसे यू कैन लर्न इट इफ पॉसिबल। नेक्स्ट है Prime Minister Narendra Modi went on a lion safari at Gir Wildlife Sanctuary in Gujarat's Junagadh district on the occasion of World Wildlife Day during his tour of the state। ठीक है। सो सिंस प्राइम मिनिस्टर इज रिलेटेड टू दिस, जहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर का आ जाएगा ना नाम, इट बिकम्स इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। इफ़ यू इनॉग्रेट सम टेम्पल और समथिंग, या जैसे अभी यहाँ पे गए हैं, तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? गुजरात में, जूनागढ़ में। ठीक है। और वहाँ पे लायंस का देयर इज अ साइजेबल पॉपुलेशन देयर। नेक्स्ट है आफ्टर 30 years 85 cape vulture has been sighted in South Africa's Eastern Cape province near Mountain Zebra National Park। ठीक है।
तो कहाँ का है ये? अफ्रीका। दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बस ये पूछ सकते हैं आपको कि केप वल्चर कहाँ का एनिमल है, तो ये साउथ अफ्रीकन स्पीशीज़ है। वहाँ के माउंट ज़ेब्रा नेशनल पार्क है, वहाँ पे मिलता है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है द पॉपुलर ऋषिकोंडा बीच इन विशाखापट्टनम has been temporarily stripped of its prestigious Blue Flag certification due to alleged maintenance and hygiene concerns. ठीक है, तो कौन सा है? ऋषिकोंडा बीच इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। उसका ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ले लिया है। अभी हमने जनवरी में पढ़ा था कि 2 बीचेस को मिला है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ठीक है, केरला के थे, एक तो कपड़ था और चाल था। ठीक है, लेट मी रिवाइज वहाँ से। ये रहा केरला का कपड़ बीच इन कोझिकोडे एंड चाल बीच इन कन्नूर हैव बीन बेस्टोड विद द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। कि कौन देता है ये? डेनमार्क का फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन देता है। ठीक है, और अभी जो मार्च में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश का जो ऋषिकोंडा बीच है उसका ले लिया उन लोगों ने। इट हैज़ बीन स्ट्रिप्ड ऑफ दिस सर्टिफिकेशन ड्यू टू वही मेंटेनेंस इश्यूज एंड हाइजीन कंसर्न्स। In a recent discovery, researchers recently identified a new species of freshwater algae named Schithia rosmalayensis. This is not important. ठीक है, पर फिर भी कभी भी वैसे तो पूछेंगे नहीं, पर मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं कि ये शीथिया और रोजमैलेयनेसिस किसका स्पीशीज़ है। यहाँ पे स्पीशीज़ का नाम दिया, स्पीशीज़ नहीं, यहाँ स्पीशीज़ का नाम दिया रहेगा और यहाँ पे इट इज़ अ टाइप ऑफ वॉट। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेश वाटर alga है या फिश, ऐसे कुछ भी दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ केरला हैज़ रिपोर्टेड द डिस्कवरी ऑफ 2 न्यू स्पीशीज ऑफ जंपिंग स्पाइडर्स belonging to the genus Epidellexia from the Shandurne Wildlife Sanctuary. ठीक है, तो इसमें बस इम्पोर्टेंट ये सब इतना मेरे हिसाब से हाँ चलो ये पूछ सकते हैं कि जंपिंग स्पाइडर्स कहाँ पे मिलते हैं। तो ये वही वेस्टर्न घाट्स में, और प्राइमरली कहाँ पे? शंदुरने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, तो शंदुरने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है ये भी पूछ सकते हैं, केरला में। ठीक है, तो इसको लर्न करने के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं? दूरने केरला। केरला देखो बाकी के इंडिया से काफ़ी दूर होता है ना, ऐसे लर्न करने के लिए मैं बता रही हूँ कि पूरा दूर साउथ में जाके है केरला। ठीक है, तो दूर ने दूर है बहुत केरला, तो शंदूरने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट, researchers at the National Bureau of Fish Genetic Resources, functioning under the Indian Council of Agricultural Research, have discovered a new species of congrid eel and named it in Tamil. तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि न्यू ईल मिली है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, PM Modi announces 16th Asiatic lion population census expansion of Project Cheetah. The 16th Asiatic lion is scheduled to be conducted in May 25. The lion census will be the most intense this time due to a sharp rise in lion population, and they spread across 9 districts spanning over 30,000 square kilometer area. तो जो प्रोजेक्ट चीता है ना, उसके अंडर एशियाटिक लायन पॉपुलेशन सेंसस हो रहा है। और एशियाटिक लायंस कहाँ पे मिलते हैं? गुजरात में गिर में। ठीक है, और किस प्रोजेक्ट के अंडर कर रहे हैं इसको? प्रोजेक्ट चीता। वेट, मेरे को ये कंफर्म करने दो। हाँ, ये गलत लिखा है यहाँ पे, तो प्रोजेक्ट चीता के अंडर नहीं है। दिस इज एन इंडिपेंडेंट न्यूज़, ये भी दूसरी न्यूज़ है, वो देयर इज अ मिसप्रिंट ओवर हियर। ठीक है,
तो बेसिकली क्या हुआ है, एशियाटिक लायन सेंसस करवा रहे हैं, 2025 में हुआ था मई में, एंड दिस इज अ वेरी इंटेंस census because there has been a sharp rise in the lion population and they have spread across 9 districts. ये सारे वहीं पे गुजरात में ही है। गुजरात में जो गिर नेशनल पार्क है ना, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे दे आर प्राइमरीली, वहाँ पे इनका कोर पॉपुलेशन वहाँ पे ही है। ठीक है। और दूसरा जो न्यूज़ आइटम वो है कि जो प्रोजेक्ट चीता है ना, प्रोजेक्ट चीता हैज़ बीन एक्सपैंडेड टू न्यू साइट्स इन मध्य प्रदेश एंड गुजरात। ठीक है। प्रोजेक्ट चीता के अंडर क्या करा था, अफ्रीका से चीता इंट्रोड्यूस करे थे इंडिया में, है ना, उसकी बात हो रही है। एंड देयर आर प्लान्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग देम टू फर्दर न्यू लोकेशंस लाइक फर्दर न्यू साइट्स में इनको इंट्रोड्यूस करेंगे इन मध्य प्रदेश एंड गुजरात। ठीक है। नेक्स्ट है the first population estimation of riverine dolphins in India has revealed the presence of 6,300 dolphins in Ganga, Brahmaputra, and Indus river systems, according to a government report which has been published. It is conducted by the Wildlife Institute of India under the Union Environment Ministries. ठीक है। तो इसमें बस इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको पूछ सकते हैं जो इंडियन डॉल्फिन्स है उसकी पॉपुलेशन कौन से रिवर्स में मिलती है ना। सो सम ऑप्शंस विल बी गिवन, तो उसमें से कोई भी फालतू का ऑप्शन भी डाल देंगे, जैसे नर्मदा भी डाल देंगे, तो नर्मदा में नहीं मिलता है ये। ठीक है। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर सिस्टम्स में मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट है द ग्रेट वन हॉर्न्ड राइनोसोरस पॉपुलेशन इन वेस्ट बंगाल हैज़ इंक्रीज्ड टू 392 फ्रॉम 229। तो दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है द Sagreshwar Wildlife Sanctuary has 536 sambars and 295 cheetals. Cheetal matlab spotted deer, and this makes the sanctuary one of the highest in deer population, especially amongst man-made wildlife sanctuaries. ठीक है। तो सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेट अ सेकेंड, लेट मी सी। ये है महाराष्ट्र में। इसको लर्न कैसे करेंगे, महाराष्ट्र में है। इसको लर्न करने के लिए आप लर्न कर लो जैसे सागर, तो महाराष्ट्र के पास में, मुंबई के पास में अरेबियन सागर है ना, अरेबियन सी। तो वैसे लर्न हो जाएगा, महाराष्ट्र का कोस्ट लाइन अरेबियन सागर से लगता है, तो सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो इन महाराष्ट्र। ठीक है। और यहाँ पे डियर्स के बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, यही दिया है इसमें। नेक्स्ट है अप्रैल के इन्वायरमेंट रिलेटेड न्यूज़ आइटम्स। April 2025. First of all, Climate and Health Africa Conference, that is CHAC 2024, was concluded in Zimbabwe with the adoption of the Harare Declaration, calling for urgent action to strengthen climate resilient health systems across Africa. Wait, अच्छा, तो क्या है, क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस जिम्बाब्वे में हुई थी, और क्या डिक्लेरेशन, ये इम्पोर्टेंट है, हरारे डिक्लेरेशन आया था। ठीक है। कॉलिंग फॉर अर्जेंट एक्शन टू स्ट्रेंथन क्लाइमेट रेजिलिएंट हेल्थ सिस्टम्स अक्रॉस अफ्रीका। तो ये क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस CHAC 2024 इन जिम्बाब्वे हेल्थ के ऊपर है, क्लाइमेट और हेल्थ के ऊपर है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हरारे डिक्लेरेशन। ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य
a 258 square kilometer area in Sagar district as a wildlife sanctuary named after डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. ठीक है, तो एक न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हाँ बनाया है एंड इट इज़ नेम्ड आफ्टर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अभयारण्य उसका नाम है. कहाँ पे? सागर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी. ठीक है, तो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है ही वॉज बोर्न इन मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में एक मऊ करके एक जगह है, वहाँ पे ही वॉज बोर्न. ठीक है, सो दैट इज़ वाई एमपी का ही एक सागर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर हिम. नेक्स्ट, recently the cheetah project steering committee officially approved the relocation of cheetahs from Kuno National Park to Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary in MP. तो आपको पता होगा प्रोजेक्ट चीता हुआ था. प्रोजेक्ट चीता में अ लॉट ऑफ अफ्रीकन चीतास वर ब्रॉट टू इंडिया बिकॉज जो एशियाटिक चीता थे इंडिया के दे हैव बिकम एक्सटिंक्ट, है ना. तो अफ्रीकन चीतास को इंडिया में लाए थे और कहाँ पे? कूनो पालपुर नेशनल पार्क. कूनो पालपुर नेशनल पार्क ऑफ एमपी, वहाँ पे इनको रीलोकेट किया था ताकि इनका इंडिया में भी आ जाए ये सब, है ना. तो अभी सम ऑफ द चीतास बीन री मतलब उनके लिए दे आर बीइंग रीलोकेटेड टू गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ ऑल्सो इन मध्य प्रदेश. ठीक है, नेक्स्ट है a rare golden tiger, also known as golden tabby tiger, was recently sighted and photographed in Kaziranga National Park, Assam. ठीक है, तो दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट ऐसे देख सकते हैं. नेक्स्ट, forest fires that had erupted in several past parts of Mizoram's Phangpui National Park have affected nearly 1/9 of the park's total area. तो इसमें वही सिंस दिस हैज़ बीन इन न्यूज़ तो फांगपुई नेशनल पार्क बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. मिजोरम्स फांगपुई नेशनल पार्क हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ इन न्यूज़. ठीक है, नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज is finalizing the contours of a new initiative called the Tigers Outside Tiger Reserves project. तो एक न्यू इनिशिएटिव लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और उसका नाम क्या है? टाइगर्स आउटसाइड द टाइगर रिजर्व्स प्रोजेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया सेलिब्रेट्स 52 years of Project Tiger. Project Tiger was launched on April 1st, 1973 to protect the country's dwindling tiger population. ठीक है, तो उसके 52 years हो गए. दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. अगर जैसे कोई जैसे 50 years होता है या फिर जैसे 100 years होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. 75, है ना. 52 पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फॉर द एग्जामिनेशन. ठीक है, नेक्स्ट है environmentalists and citizens launched the Save Bandipur protest in Karnataka after reports emerged that the state government may lift the night traffic ban on NH 766, formerly known as NH 212, which cuts through the Bandipur National Park. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमको वही पूछेंगे कि बांदीपुर कहाँ पे है. वो सिंपलेस्ट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में. दैट इज़ इन कर्नाटका. बांदीपुर नेशनल पार्क इज़ इन कर्नाटका. ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हैं वहाँ पे नाइट ट्रैफिक पे बैन किया हुआ था सो दैट द वाइल्ड लाइफ डज नॉट गेट डिस्टर्ब्ड, है ना. NH 766 है, बांदीपुर से निकलता है, तो वो अभी हटाने लगे हैं बैन. सो लॉट ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट्स हैव क्रिटिसाइज्ड दिस मूव. नेक्स्ट है अ न्यू स्पीशीज ऑफ लैंड स्नेल has been discovered by a team of researchers from India and the UK. The species has been named Theobaldus concanis, जो भी है. It was discovered in the Konkan region of Maharashtra. तो इसमें क्या हो रहा है? A new species of ये important नहीं है लैंड स्नेल स्पीशीज़ का.
दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट गो थ्रू इट वंस. कहाँ का है ये? कोंकणी रीजन का है. कोंकणी रीजन कहाँ महाराष्ट्र में होता है. नेक्स्ट है अ न्यू स्टडी बाय द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया involving DNA barcoding to identify species accurately is expected to lead to better management and control strategies for black flies which are carriers of a worm causing river blindness. जो भी है. So again this is not a very important news item. ठीक है. Next है Brazil has proposed the creation of Climate Change Council, a new international body to accelerate global climate action under the United Nations Framework Convention on Climate Change. नाम क्या है? क्लाइमेट चेंज काउंसिल प्रपोज करा है UNFCC के अंडर. और किसने करा है प्रपोज? ब्राज़ील ने. ठीक है. लर्न करने के लिए कैसे लर्न कर सकते हैं? ABCD अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, तो B के बाद आता है C, है ना. तो इसको ब्राज़ील के बाद में B से ब्राज़ील और फिर CCC, क्लाइमेट चेंज काउंसिल. ठीक है. ऐसे ही लर्न करने के लिए मैंने बताया. देन वी हैव द बायोल्यूमिनेसेंट ब्लूम इन कोचीज बैक वाटर्स while visually stunning has raised ecological and economic concerns due to its harmful effects on marine life and local fishing communities. तो एक बायोल्यूमिनेसेंट ब्लूम हुआ था कोची के बैक वाटर्स में विच लुक्ड क्वाइट नाइस, पर वो वैसे बेसिकली इन्वायरमेंटली इट वॉज नॉट अ वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ ऑफ दैट रीजन. ठीक है. तो बायोल्यूमिनेसेंट ब्लूम बेसिकली क्या होता है? एक सेकेंड मैं बताती हूँ. लूमिन ये एल्गे से रिलेटेड एक इवेंट होता है वेरिन जो एल्गे होते हैं ना वो दे स्टार्ट एमिटिंग लाइट. ठीक है. और बेसिकली क्यों होता है? यूजुअली फ्रॉम एन एल्गे ब्लूम ऑफ प्लैंक्टन्स. ठीक है. प्राइमरली अगर कोई कंटामिनेंट है वाटर में, दैट इज़ व्हेन दिस कम्स इनटू पिक्चर. जो कोई भी कंटामिनेंट है उससे एल्गेज का कुछ रिएक्शन तो नहीं, पता नहीं, कुछ भी इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से दिस कम्स इनटू प्ले. तो प्राइमरली एल्गे की वजह से होता है ये. ठीक है. एंड इट इज़ नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ ऑफ दैट रीजन. नॉट अ गुड इंडिकेटर. नेक्स्ट है अ रेयर लॉन्ग स्नाउटेड वाइन स्नेक has been rediscovered in the Dudhwa Tiger Reserve in Lakhimpur Kheri in Uttar Pradesh, marking its first documented sighting in the state and only the second recorded instance in India. तो again this is not important. बस आप ये याद रखना कि दुधवा टाइगर रिजर्व इट हैज़ बीन इन द न्यूज़. सो कहाँ पे है ये? यूपी में है, लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है. नेक्स्ट है इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस. It has signed an agreement with the central government formalizing India as the headquarters and secretariat of the alliance. ठीक है. तो न्यू दिल्ली में इसका सेक्रेटेरिएट और हेडक्वार्टर्स है ना, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के. एंड इंडिया इज द वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दिस अलायंस. ठीक है. इसको प्राइमरीली 7 बिग कैट स्पीशीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए है. ठीक है. ये वही चीता, टाइगर, ये सब को प्रोटेक्ट करने के लिए है. महाराष्ट्र स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड हैज़ ऑफिशियली अप्रूव्ड द डिक्लेरेशन ऑफ DPS फ्लामिंगो लेक as a conservation reserve, thus making it the first wetland connected to the Thane Creek Flamingo Sanctuary to receive such protection. तो DPS फ्लामिंगो लेक है एक, उसको कंजर्वेशन रिजर्व की जैसे डिक्लेयर कर दिया है, मेकिंग इट द फर्स्ट वेटलैंड कनेक्टेड टू द थाने क्रीक फ्लामिंगो सेंचुरी. ठीक है. तो इसमें बस यही पूछ सकते हैं न्यू
क्वेश्चंस में कि डीपीएस फ्लैमिंगो लेक कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र। एंड थाने क्रीक फ्लैमिंगो सेंचुरी कहाँ पे, ये भी कहाँ पे, महाराष्ट्र। ठीक है, तो आप याद रखना फ्लैमिंगो, फ्लैमिंगो किसको बोलते हैं, एक बर्ड होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लैमिंगो। थोड़ा सुंदर सा पिंक कलर ये सब भी होते हैं उनके, है ना। नेक्स्ट है two cheetahs, Prabhas and Pavak, moved to their new home as MP Chief Minister released them into गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अभी हमने पढ़ा था कि रीलोकेट कर रहे हैं। कोनो पालपुर में थे प्रोजेक्ट चीता के अंडर, प्रोजेक्ट चीता के अंडर अफ्रीका से सम चीताज वर ब्रॉट एंड रीसेटल्ड या रीलोकेटेड टू इंडियन, मतलब इंडियन कंडीशंस में उनको बड़ा कर ब्रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कूनोपालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन एमपी, वहाँ पे इनको डाला था। देन नाउ सम ऑफ द चीताज आर बीइंग ब्रॉट टू गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ अगेन एमपी इटसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट है FAO has launched the Aim for Nature initiative with UK's support to enhance global monitoring of ecosystem restoration under the Kunming-Montreal Biodiversity Framework। तो क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका इनिशिएटिव है एम फॉर नेचर इनिशिएटिव। और इसका काम क्या है, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन करना है। और किसके अंडर आता है ये वाला इनिशिएटिव, कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंडर। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़। FAO ने लॉन्च किया है एम फॉर नेचर इनिशिएटिव, किसके अंडर आता है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंडर, ठीक है, वही ग्लोबल मॉनिटरिंग ऑफ इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। इसको लर्न कैसे करेंगे, देखो FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो फूड फूड खाना, अच्छा खाना मिले, ये सब लोगों का एम होता है ना, ठीक है। एवरी ह्यूमन एम्स टू गेट गुड फूड, ठीक है। और और हम लोग क्या, जैसे मिंग, कनमिंग का मिंग मतलब चाइनीज़ फूड, हम लोगों को चाइनीज़ फूड भी काफ़ी पसंद होता है सब लोगों को। तो वैसे करके कुछ भी आप लर्निंग एड यूज़ करके इसको लर्न कर लेना, बिकॉज दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम। नेक्स्ट है researchers at the Center for Peninsular Aquatic Genetic Resources, Kochi, of the National Bureau of Fish Genetic Resources have discovered two new species of freshwater fishes from the Western Ghats. और names क्या उनके, Labiouru और Labio chakida. So this is not important, ठीक है। बस ये पूछ सकते हैं कि सेंटर फॉर पेनिनसुलर एक्वेटिक जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पे है, तो कोची में, ठीक है, केरला। नेक्स्ट है अ रेयर वीडियो कैप्चर्ड नियर साउथ सैंडविच आइलैंड्स शोज पिगटेल्स पैरासाइट्स क्लिंगिंग टू अ डीप, ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में इंडियन कोस्ट गार्ड लॉन्चेस ऑपरेशन ओलिविया to protect olive ridley turtles at the time of their nesting period which occurred from December to May every year, ठीक है। तो ऑपरेशन ओलिविया करा है लॉन्च किसने, इंडियन कोस्ट गार्ड में, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन ओलिविया। ये कहाँ पे होता है, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑलिव रिडली टर्टल्स कहाँ पे आते हैं इंडिया में, ओडिशा में, है ना। ओडिशा में आपने सुना होगा गहिरमाथा और ऋषिकुल्य रिवर के जो माउथ है उसके ऊपर, गहिरमाथा एंड ऋषिकुल्य रिवर, वहाँ पे काफ़ी सारे ऑलिव रिडली टर्टल्स आते हैं फॉर नेस्टिंग, और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने दे हैव लॉन्च्ड ऑपरेशन ओलिविया, ठीक है।
नेक्स्ट है गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट फर्म्स अक्रॉस द ग्लोब आर इंटेंसिफाइंग एफर्ट्स टू एक्सप्लोर natural hydrogen as a low cost zero emission fuel with recent discoveries in France's Moselle region and strong interest from India. Natural hydrogen is free molecular hydrogen that occurs naturally underground. ठीक है तो नेचुरल हाइड्रोजन को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट एंड प्राइवेट फर्म्स अक्रॉस द ग्लोब ने, बस ये न्यूज़ आइटम दिया है। और नेचुरल हाइड्रोजन का रीसेंट डिस्कवरीज कहाँ से मिले हैं, तो फ्रांस के मोजेल रीजन। सो दिस इज़ द ओनली इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस इंटायर न्यूज़ आइटम। ठीक है, फ्रांस का जो मोजेल रीजन है वहाँ पे काफ़ी सारा नेचुरल हाइड्रोजन मिल रहा है आजकल, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग, फ्रांस फ्रांस से हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको लर्न करने के लिए आप ऐसे सोच लो, फ्रांस में अगर आप वहाँ गए, ठीक है पेरिस में गए ना, पेरिस में आपने बहुत सारे बलून्स देखे, हाइड्रोजन बलून्स। ठीक है, बस ऐसा कुछ भी सीन बना लो, दैट वे यू विल बी एबल टू लर्न दिस। ठीक है, फ्रांस में आप गए, पेरिस में, यू सॉ अ लॉट ऑफ हाइड्रोजन बलून्स फ्लोटिंग अराउंड। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन बलून्स थे इनको काफ़ी सारे वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स सेल कर रहे थे। ठीक है, तो सेल से आपको क्या लर्न हो जाएगा, मोसेल। ठीक है, तो इससे हो गया आपका लर्न। नेक्स्ट है a wildlife corridor project designed to connect protected habitats in Madhya Pradesh and Rajasthan for the reintroduced cheetahs to roam safely and naturally across a war. अच्छा, ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर प्रोजेक्ट लॉन्च करा है प्राइमरली फॉर द चीताज अंडर प्रोजेक्ट चीता। ठीक है, तो कहाँ पे बना रहे हैं वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, राजस्थान एमपी के बीच में। ठीक है, द कॉरिडोर विल लिंक पालपुर, कूनो पालपुर नेशनल पार्क एंड गांधी सागर सेंचुरी इन एमपी with the Mukundra Hills Tiger Reserve in Rajasthan. So this is very important. बेसिकली एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बना रहे हैं फॉर चीताज फ्रॉम द कूनो पालपुर नेशनल पार्क, गांधी सागर सेंचुरी इन एमपी विद मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व इन राजस्थान। ठीक है, बस इतना ही लर्न करना है हमको। दिस इज क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड हिसारघट्टा grassland conservation reserve under the section 36A of the Wildlife Protection Act 1972। तो हिसाराघट्टा जो ग्रासलैंड है ना, वो है कर्नाटका में। इनको सेक्शन 36A, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बेसिकली जो सेक्शन 36A है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, इट इज़ बेस्ड एट, उनका बेसिस यही है कि इट इज़ एम्ड एट प्रोटेक्टिंग वेरियस लेक्स, लेक बेड्स एट्सेट्रा। ठीक है, वेटलैंड एरियाज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, सेक्शन 36A, तो उसके अंडर इसको भी नोटिफाई कर दिया है। तो सवाल ये नहीं आएगा, सवाल आएगा हिसारघट्टा ग्रासलैंड कहाँ पे है, हिसारघट्टा ग्रासलैंड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है। सो द आंसर विल बी कर्नाटका। ठीक है, तो इसको लर्न कैसे करेंगे, कर्नाटका में बैंगलोर होता है ना, और बस लर्न करने के लिए आप लर्न कर सकते हैं कि सारा, मतलब सारे के सारे आईटी कंपनीज कहाँ पे होते हैं, बैंगलोर में। ठीक है, तो उससे ऐसे लर्न करने के लिए मैंने बताया है निमोनिक सा, सारा के सारा आईटी कंपनीज
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज आर एट बैंगलोर. तो हिसारागट्टा कर्नाटका में. नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश notified Sarabchu Conservation Reserve as India's largest conservation reserve to safeguard high altitude biodiversity, particularly snow leopards, and strengthen wildlife corridors. ठीक है, so this is again very important. नाम क्या है? सारापचू कंजर्वेशन रिजर्व इन हिमाचल प्रदेश. ठीक है, it is India's largest conservation reserve for safeguarding high altitude biodiversity like snow leopards etc. ठीक है, इसको कैसे लर्न करेंगे? जैसे हमने यहाँ का जो सारा था वो कर्नाटका बैंगलोर के लिए लर्न कर लिया था ना कि सारा का सारा आईटी कंपनीज आर इन बैंगलोर. सिमिलरली इसके लिए ऐसे लर्न कर लो कि सारा का सारा हाई ऑल्टीट्यूड बायोडाइवर्सिटी इज इन हिमाचल प्रदेश. हिमाचल. ठीक है, दिस इज अ गुड वे ऑफ लर्निंग इट. सारा हाई ऑल्टीट्यूड बायोडाइवर्सिटी इज इन हिमाचल प्रदेश. तो सारापचू कंजर्वेशन रिजर्व. नेक्स्ट है a proposed 23.7 crore eco-tourism project in Nongkhilam Wildlife Sanctuary of Meghalaya has triggered opposition from local groups and environmental activists. Nongkhilam Tiger Wildlife Sanctuary was established in 1981 as a protected sanctuary under the Wildlife Protection Act 1972. तो इसमें से बस important क्या, since this sanctuary has been in news, so it becomes important. ठीक है, इसको कैसे लर्न करेंगे? मेघालय. मेघालय मतलब मेघ, क्लाउड्स है ना. मेघालय से मेघ से क्लाउड्स बोल सकते हैं हम लोग, है ना. तो जब भी क्लाउड्स आते हैं क्लाउडी वेदर में, क्लाउडी वेदर या जो रेन्स होते हैं, तब वहाँ पे बच्चे खेलने चले जाते हैं ना, खेलने. तो खेलने से यू कैन लर्न खिलम. ठीक है, नॉन्ग खिलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसे लर्न हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है, एन इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट्स हैज सक्सेसफुली मैप्ड द जीनोम ऑफ द साउला, that is the world's largest land mammal, thus offering a new hope for its conservation through genetic rescue and captive breeding. तो ये इम्पॉर्टेंट है कि वर्ल्ड्स रेयरेस्ट लार्ज लैंड मैमल कौन है? वर्ल्ड्स रेयरेस्ट लार्ज लैंड मैमल कौन होता है? साउला. ठीक है, उसका जीनोम कुछ भी कर लिया है हम लोगों ने, मैपिंग कर लिया, जीनोम मैपिंग. तो ये बेसिकली एक डियर जैसा कुछ, गोट डियर ऐसे बीच में कुछ चीज़ होती है. ठीक है, बस उसको ही साउला बोलते हैं. और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें. साउला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए. इट इज़ वन ऑफ वर्ल्ड्स रेयरेस्ट लार्जेस्ट लैंड मैमल. गोट जैसा कुछ दिखता है. ठीक है, गोट या डियर जैसा कुछ दिखता है. नेक्स्ट, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बनाना in fruit sense found in the forests of Andaman. A 4.2-meter fruit-bearing structure has been recorded in a wild banana species. तो ये important नहीं है. ठीक है, next है, India has stated it will retaliate if the UK imposes a carbon tax on Indian exports starting January 27, calling it a violation of the CBDR, that is Common but Differentiated Responsibility Principle under International Climate Change Agreements. ठीक है, तो बस इसको लर्न कर लो कि कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाने का कोशिश कर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम. Britain is trying to impose carbon tax on Indian exports and we have opposed this under CBDR. Next है, India actively participated in United Nations Forum on Forests held at UN headquarters New York, presenting achievements in sustainable forest management. तो यूनाइटेड नेशंस
फोरम ऑन फॉरेस्ट्स का ये हुआ था और इंडिया हैज़ पार्टिसिपेटेड इन इट। ठीक है, तो नॉट वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, न्यूयॉर्क में हुआ था बस। नहीं, just go through it once, it is not an important news. Next, after 30 years, 20 critically endangered red-crowned roofed turtles were successfully reintroduced into the Ganga River under the Namami Gange mission, marking a key biodiversity milestone. ठीक है, तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि जो रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल्स हैं वो कहाँ पे, कौन से रिवर में दे आर प्रोमिनेंटली फाउंड, तो इसका आंसर रहेगा गंगा। ठीक है, नेक्स्ट है और ये क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल्स। नेक्स्ट है नारायण पटना गोट, which is a native to Odisha's eastern Ghats, has drawn attention for its disease resistance and climate resilience. But it faces threats due to unscientific crossbreeding and lack of breed recognition. तो हाँ, इसमें क्या पूछ सकते हैं, बाकी का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नारायण पटना गोट है वो कहाँ का नेटिव है, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, नारायण पटना गोट कहाँ का है, ओडिशा की ईस्टर्न घाट का है। ठीक है, तो इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग। पटना कहाँ पे होता है, बिहार है ना, पटना इज इन बिहार, बिहार के पास में ही उड़ीसा, ऐसे सोच लो आप, वैसे दूर है। ठीक है, तो नारायण पटना मतलब नॉट पटना, नारायण नॉट पटना बट रादर ओडिशा। बस ऐसे लर्न करने के लिए, इफ़ यू आर एबल टू रिमेंबर दिस देन यूज दिस मेथड। ठीक है, नारायण पटना कोट कहाँ का है, ओडिशा की ईस्टर्न घाट का। नेक्स्ट है अर्जेंटीनाज मोस्ट फेमस ग्लेशियर, द पेरेटो मोरेनो ग्लेशियर, which has a surface area of around 250 square kilometers. That is the total area of Patna and Bihar is crumbling. तो इसमें सवाल क्या पूछ सकते हैं, पेरो पेरेटो मोरेनो ग्लेशियर कहाँ पे है। ठीक है, दिस विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बस यही पूछ सकते हैं ज़्यादा। तो पेरेटो मोरेनो ग्लेशियर कहाँ पे, अर्जेंटीना। ठीक है, एंड इट हैज़ बीन इन न्यूज़ बिकॉज वो वी आर लूजिंग दैट ग्लेशियर। ठीक है, इट इज़ मेल्टिंग फास्टली, मेल्टिंग एज वेल एज क्रम्बलिंग। इसको लर्न कैसे करेंगे, तो अर्जेंटीना से वो फेमस फुटबॉलर मेसी वहीं से है ना, अर्जेंटीना से है। तो इसको ऐसे लर्न कर लो कि वो अभी आए थे इंडिया में है ना, फॉर अ वर्ल्ड, ही इज़ ऑन अ वर्ल्ड टूर और समथिंग एंड ही हैड विजिटेड इंडिया ऑल्सो। तो इसको ऐसे, पर इतने मोर नंबर ऑफ पीपल हैड कम टू सी मेसी, है ना, ऐसे करके लर्न कर लो, पर मोर नंबर ऑफ पीपल हैड कम टू सी मेसी। तो उससे आपको अर्जेंटीना याद हो जाएगा और पेरेटो मोरेनो ग्लेशियर भी लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एन इको सेंसिटिव जोन अराउंड द थ्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो इको सेंसिटिव जोन वो रहता है, उसमें थोड़े से एक्टिविटीज़, काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ आर रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि ट्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ इन, वेट अ सेकेंड, हाँ, इट इज़ लोकेटेड इन श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर में है। श्रीनगर के पास में है। ठीक है, पुलवामा टाउन है वहाँ पे है ये थ्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और उसके आसपास इको सेंसिटिव जोन डेजिग्नेट कर दिया है। ठीक है, तो ये याद रखना, थ्राल। इसको लर्न कैसे करना है हमको, ट्राई से लर्न कर लो। TRAI का फुल फॉर्म क्या होता है, द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है हमारी, वो काफ़ी सारा जो
जम्मू कश्मीर का ना जो इंटरनेट सर्विसेज है उसको काफ़ी रेगुलेटेड रखती है इंटरनेट सर्विसेज। तो वहाँ पे कई बार बंद हो जाता है इंटरनेट सर्विसेज काफ़ी दिनों के लिए। तो ऐसे लर्न कर सकते हैं कि जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो जम्मू कश्मीर की इंटरनेट सर्विसेज को काफ़ी ज़्यादा रेगुलेट करते रहती है। तो ट्राई से त्राल लर्न हो जाएगा और जम्मू कश्मीर लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट, the World Meteorological Organization has released a new decadal climate forecast, warning that global temperatures between 25 and 2029 are expected to remain at or above the record levels, significantly increasing climate related risks and developmental challenges. ठीक है, तो WMO है, उन्होंने एक डिकेडल क्लाइमेट फोरकास्ट निकाला है और उसके अकॉर्डिंग 2025 एंड 2029 के बीच में द टेम्परेचर्स विल बी वेरी हाई। ठीक है, दे विल बी एट रिकॉर्ड लेवल्स और हायर। तो दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ये से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, वेट अ सेकेंड, हाँ, the Gujarat Forest Department conducted the 16th Asiatic Lion Census from May 10th to 13th across 58 talukas and 11 districts of Saurashtra, thus covering a vast area of around 35,000 square kilometers. Asiatic lions have increased from around 674 in 2020 to 891 in 2025. That is around 217 lions have इंक्रीज हो गए हैं इन द पास्ट 5 years। ठीक है, तो क्या है, गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इट कंडक्टेड द 16th एशियाटिक लायन सेंसस। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि ये हो रहा है 16th एशियाटिक लायन सेंसस। प्राइम मिनिस्टर हैड एक्चुअली गिवन द गो अहेड फॉर दिस एंड 11 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात में हो रहा है ये। और द नंबर ऑफ लायंस हैव इंक्रीज्ड, मतलब सब्सटेंशियली इंक्रीज हो गए हैं फ्रॉम 67 to 891। देन वी हैव वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक हैज़ बीन डिस्कवर, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वैसे अमेजोन में डिस्कवर हुआ है बिकॉज वहीं पे ज़्यादा जंगल है, वहीं पे रहेगा। ठीक है, नाम क्या है, द नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन मई में हुआ था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जून के इन्वायरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स। So first of all, the Drum app, DRUM app, developed by IIT Kharagpur researchers, is said to begin real-world trials after successful simulations in Delhi. It is a web-based mobility application that suggests real-time route options based upon pollution, energy, speed and distance metrics. ठीक है, तो DRUM ऐप है, क्या है, मोबिलिटी ऐप है, जैसे गूगल मैप्स टाइप कुछ रहेगा ये। ठीक है, ये बेसिकली रूट ऑप्शंस देगा, जैसे इवन गूगल मैप्स में आपको रूट के ऑप्शंस मिलते हैं। हाउएवर दिस विल बी बेस्ड अपॉन पोल्यूशन, एनर्जी, स्पीड एज वेल एज डिस्टेंस के मेट्रिक्स पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, ड्रम ऐप बाय IIT खड़गपुर। नेक्स्ट, द herpetofauna survey conducted in Periyar Tiger Reserve recently has added 5 new species to the list of amphibians and 3 new species to that of reptiles, revealing the rich biodiversity of that region. The PTR is named after Periyar River. It is located in Idukki district of central Kerala. ठीक है, तो herpetofauna का मतलब क्या होता है, ठीक है, रेप्टाइल्स एंड एम्फिबियंस ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और हैबिटेट। ठीक है, तो उनके बारे में एक सर्वे करा है। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बस आप ये याद रखना कि पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे, केरला में। ठीक है, और पेरियार रिवर भी उसके आसपास ही है, उसके ऊपर नेम्ड है ये। नेक्स्ट, द वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिफाइड ग्लोबल चेकलिस्ट ऑफ बर्ड स्पीशीज कॉल्ड द एवी लिस्ट was officially launched, standardizing bird taxonomy across international conservation research and biodiversity platforms. So this is a very important news item. ठीक है, एवी लिस्ट,
Avi list is a global checklist of bird species. ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम, तो ये याद रखना। एवी लिस्ट क्या है? ग्लोबल चेकलिस्ट ऑफ बर्ड स्पीशीज। तो पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड द टैक्सोनॉमी ऑफ बर्ड्स हैज बीन स्टैंडर्डाइज्ड। Next, India has added two new Ramsar sites, that is Menar in Udaipur and Khichen, Falodi, ahead of World Environment Day. With this, the total number of Ramsar wetlands in India has risen to 91, which is the highest in Asia and third highest globally. ठीक है, तो दो नए रामसर साइट्स ऐड हुए हैं। एक तो उदयपुर में मेनर करके है, और दूसरा खीचन है, वो वहीं पे राजस्थान में खीचन करके एक रीजन है, वहाँ पे लॉट ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स विजिट एवरी ईयर। ठीक है, तो उन दोनों को दे हैव बीन डिक्लेयर्ड टू बी रामसर साइट्स, मेनहर नियर उदयपुर और खीचन इन फलोडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, दोनों राजस्थान में है। So now India has the highest number of Ramsar sites in Asia and the third highest globally. ठीक है, कितने हैं? 91। नेक्स्ट है बॉर्न क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ 2025 began on June 16th in Germany with over 5,000 delegates. This is not important, ठीक है, बस ये पूछ सकते हैं कि बॉर्न क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी, तो जर्मनी में। नेक्स्ट है Central Pollution Control Board released the draft guidelines on June 4th for managing solar photovoltaic wastes under the e-waste management rules of 2022. ठीक है, तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में पता है, इट हैज़ रिलीज्ड ड्राफ्ट गाइडलाइंस ऑन जून 4th फॉर मैनेज, ये दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए कि जो सोलर फोटोवोल्टाइक वेस्ट है उसको भी ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 के अंडर ही हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस concluded in Nice, France, with a landmark political declaration and over 800 voluntary commitments by 170 plus countries called as Nice Ocean Action Plan. तो ये इम्पोर्टेंट है, नाइस ओशन एक्शन प्लान जो है ना, कहाँ पे किसके लिए है? थर्ड यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस के अंदर इसको लॉन्च करा है, बस दिस मच इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है द फर्स्ट असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली and it was chaired by the environment minister Bhupendra Yadav, who was also elected as the president of IBCA. ठीक है, इंडियन इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यू दिल्ली में ही है। ठीक है, नेक्स्ट a team of researchers has identified a new species of jumping spiders in southern India known for its intelligent hunting skills and web invasion tactics. तो बस इसमें पता होना चाहिए कि जंपिंग स्पाइडर्स कहाँ पे वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं नॉर्मली। ठीक है, नेक्स्ट है न्यू फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज डिस्कवर्ड इन अरावली हिल्स लैंडस्केप नियर जयपुर, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, a council of scientific and industrial research laboratory here has developed a technology for their in situ disposal in an किस चीज़ का डिस्पोज, अच्छा ये पूरा न्यूज़ नहीं दिया बट हाउएवर दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च द अरावली ग्रीन वॉल इनिशिएटिव on the World Environment Day to rejuvenate the ancient Aravali range. So this is important since the Prime Minister has launched it. ठीक है, तो क्या नाम है? अरावली ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। कब लॉन्च हुआ था? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे, टू रिजुविनेट द एंशिएंट अरावली रेंज। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव, ही लॉन्च द घड़ियाल स्पीशीज कंजर्वेशन प्रोग्राम। घड़ियाल क्या होता है?
क्रोकोडाइल टाइप की चीज़ रहती है एक. By releasing 7 one-year-old घड़ियाल hatchlings into the Gerua River at कटारनिया घाट इन बहराज यूपी. ठीक है, तो बस ये पता होना चाहिए कि घड़ियाल स्पीशीज कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च कर दिया 2025 में. Next, a recent study by the Wildlife Institute of India confirmed the reappearance of the dhole, Asiatic wild dog, in the Kaziranga Karbi Anglong landscape, thus marking its return after being considered locally extinct. Dhole is classified as endangered by the IUCN. ठीक है, तो ढोल को क्या बोलते हैं? एशियाटिक वाइल्ड डॉग बोलते हैं. कहाँ पे मिलते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क के आसपास. ठीक है, असम साइड में. और इट वाज कंसिडर्ड टू बी लोकली एक्सटिंक्ट हाउएवर फिर से आ गया अभी. और वैसे ओरिजिनली इसका IUCN क्लासिफिकेशन क्या है? एंडेंजर्ड. ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट. ढोल कहाँ पे मिलता है ये पूछ सकते हैं. इट इज़ काजीरंगा साइड में, काजीरंगा करबी आंगलोंग लैंडस्केप. नेक्स्ट, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर रिव्यूड की इनिशिएटिव्स अंडर प्रोजेक्ट एलिफेंट as 1992. As of 2025, India has around 33 elephant reserves. These reserves are spread across 14 major elephant bearing states and cover a total area of 80,000 square kilometers. ठीक है, तो इसमें से बस ये पूछ सकते हैं कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ था. सो द आंसर फॉर दैट विल बी 1992. ठीक है, इंडिया हैज़ अराउंड 33 एलिफेंट रिजर्व्स राइट नाउ एंड 14 स्टेट्स में दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड. नेक्स्ट, अभी वी लुक एट जुलाई के आइटम्स. क्या क्या है? ठीक है, जुलाई, a new butterfly, this is not important. New butterfly species has been discovered in Western Ghats, not important. Recently, the Indian government announced greenhouse gas emissions intensity targets for entities in 8 of the 9 heavy industrial sectors participating in the carbon credit trading schemes compliance mechanism. ठीक है, तो इंडिया की जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है उसके लिए द गवर्नमेंट हैज़ come up with certain targets, intensity targets या emission targets निकाले हैं for 8 of the 9 heavy industrial sectors which are participating in this scheme. ठीक है, नेक्स्ट है zoological survey of India. It has published animal discoveries, क्या publishes animal discoveries every year detailing the new discoveries of fauna. Similarly, the Botanical Survey of India publishes plant discoveries every year detailing the new discoveries of flora. ठीक है, तो ये ऐसे आपको पता होना चाहिए, नॉट इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट, a herd of 33 rare Kharai camels from Gujarat's Singhaj village was caught in the Arabian Sea tide near Jamnagar while grazing on mangroves. Kharai camel is a rare swimming camel breed of Gujarat and it is uniquely adapted to coastal and marshy ecosystems. ठीक है, UPSC का क्वेश्चन है खराई कैमल पे. तो वैसे द न्यूज़ आइटम इट सेल्फ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट ये पूछ सकते हैं कि खराई कैमल कहाँ पे मिलते हैं. तो गुजरात में है ना, गुजरात का स्पीशीज़ है ये कैमल का एंड इट कैन स्विम इन वाटर ऑल्सो. ठीक है, Vatsala, considered to be Asia's oldest elephant, died recently at the age of more than 100 years at the Panna Tiger Reserve in Madhya Pradesh. ठीक है, सो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है ये. नाम क्या था? वत्सला. इट वॉज एशियाज ओल्डेस्ट एलिफेंट and it was more than 100 years in age and it has died at Panna Tiger Reserve of MP.
Next, hundreds of buffaloes can be seen grazing freely in the restricted Pong Wildlife Sanctuary area in Samkehar, Bathu, and Panalath near Pong wetland in a clear violation of sanctuary norms. ठीक है, तो पोंग डैम लेक ऑफ महाराणा प्रताप सागर, it is a man-made reservoir formed due to the construction of Pong Dam on the Beas River in the wetland zone of शिवालिक हिल्स इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश. ठीक है, तो इतना सारा न्यूज़ काम का नहीं है, बस इसमें ये इम्पोर्टेंट है. महाराणा प्रताप सागर या जो पोंग डैम लेक है, कहाँ पे होता है ये? हिमाचल प्रदेश. बस इतना इम्पोर्टेंट है वो पूरे में से. ठीक है, किस पे है पोंग डैम? इट इज़ ऑन ब्यास रिवर. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ब्यास रिवर पे है, पोंग डैम लेक है, और वही शिवालिक हिल्स के वेटलैंड डिस्ट्रिक्ट, वेटलैंड एरिया में आता है, वेटलैंड जोन में. इसको लर्न कैसे करेंगे? ये पोंग डैम लेक, ये वैसे हिमाचल प्रदेश में, ये आपको याद ही होगा. और बस ब्यास, जैसे बस से हम लोग जाते हैं ना हिमाचल प्रदेश घूमने, तो ऐसे लर्न कर सकते हैं कि ब्यास रिवर इज़ इन हिमाचल प्रदेश, और वहाँ पे हम लोग टेबल टेनिस को पिंग पोंग भी बोलते हैं. ठीक है, तो हम लोग हिमाचल प्रदेश घूमने गए एंड वाया बस, एंड वी ऑल्सो प्लेड पिंग पोंग देयर. तो पोंग डैम लेक, उससे हो जाएगा ब्यास रिवर और हिमाचल प्रदेश. ठीक है, नेक्स्ट है द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ हेडेड बाय Union Environment Minister has approved the proposal to redraw the boundaries of the Sariska Tiger Reserves in Rajasthan by increasing the area of its critical tiger habitat while slightly reducing its buffer zone. ठीक है, तो क्या लिखा है इसमें? नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है ना, उसका हेड कौन होता है, ये पूछ सकते हैं कि इज इट द प्राइम मिनिस्टर और द इन्वायरमेंट मिनिस्टर. तो इसका आंसर क्या रहेगा? इन्वायरमेंट मिनिस्टर. मतलब उसका जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका हेड कौन है? यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर. ठीक है, और ये बाकी का न्यूज़ इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस आपको ये पता होना चाहिए कि सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? राजस्थान में है ना, और उसका क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का जोन इज बीइंग इंक्रीज्ड. नेक्स्ट है न्यू स्पीशीज ऑफ, क्या लिखा है? डायूर्नल गेको हैज़ बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम असम. अगेन दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. कहाँ पे मिला है? गंगा में, नहीं सॉरी, ब्रह्मपुत्र रिवर में मिला है कोई नया गेको का स्पीशीज. दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम. नेक्स्ट है a specialized team has initiated the genetic analysis of samples collected from 2573 rhino horns and will add them to the Rhodus India DNA data library. तो बस इतना आपको लर्न होना चाहिए कि एक रोडिस इंडिया डीएनए डेटा लाइब्रेरी है विच रिकॉर्ड्स द जेनेटिक सैम्पल्स ऑफ राइनोसोरस. ठीक है, तो रोडिस, इससे ही नाम लर्न हो जाएगा, रोडिस से राइनोसोरस इंडिया डीएनए डेटा लाइब्रेरी. ठीक है, नेक्स्ट है तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड इंडियाज़ first Center of Excellence for Hornbill Conservation at the Annamalai Tiger Reserve in Coimbatore district. ठीक है, so the Tamil Nadu government has, कितना बचा है? हाँ, has initiated India's first Center of Excellence for Hornbill Conservation at Annamalai Tiger Reserve in Coimbatore district. ठीक है, नेक्स्ट है महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. वही नॉर्मल न्यूज़ है कि environmentalists ने they have protested about certain क्या प्रोजेक्ट्स कुछ वहाँ पे चल रहे हैं, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम. बस इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? सो द आंसर फॉर दिस इज़ गोवा.
ठीक है, गोवा में होता है महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बस इतना लर्न रखना। इसमें क्या लर्न करना है, इंडिया का फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर हॉर्नबिल कंजर्वेशन कहाँ पे, तमिलनाडु में एट अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो हम लोगों को हॉर्नबिल सुन के लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे होगा, पर नहीं, दिस इज़ इन तमिलनाडु। और कहाँ पे, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में। ठीक है, तो ऐसे देखने, हॉर्नबिल को अगर आपने फोटोज़ में देखा होगा तो उसका काफ़ी बड़ा सा बीक होता है ना, ऐसे बर्ड रहती है और बहुत लंबा सा बीक रहता है उसका। ठीक है, तो उसको लर्न करने के लिए ऐसे कर लो कि हॉर्नबिल अपने बीक से मलाई खा रहा है, तो अन्नामलाई का अन्नामलाई हो जाएगा मलाई। हॉर्नबिल अपने लंबे से बीक से ऐसे मलाई कहीं जार में से निकाल के खा रहा है। ठीक है, तो वैसे लर्न हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, वेट अ सेकेंड,